السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں طلسم عشق جان عالم ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی مجھے سب پتہ ہے، میں نہیں بولتی آپ سے، 1 ہفتہ ہو گیا، تعریف کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے آپ۔ میری سہیلیاں تو کہتی تھیں کہ عالم سائیں تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو وہ آپ کا بہت خیال رکھیں گے، ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گے۔ لیکن عالم سائیں آپ صبح سے باہر جاتے ہیں اور پورا دن گھر نہیں آتے، رات کو بھی میرے سونے کے بعد ہی کمرے میں آتے ہیں۔ اس کی اتنی شکایتیں سن کر عالم حیران رہ چکا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ہر بات پر غور کرتی تھی۔ چندہ ایسی بات نہیں ہے، میں بس کچھ کام میں مصروف تھا اس لیے۔ بس کریں عالم سائیں، آپ کے پاس سب کے لیے وقت ہے، بس ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت اپنی امی کے گھر جانا ہے، لے کر جائیں گے یا نہیں؟ اس کی آواز میں دھونس تھی، اس کا ازلی غصہ اود آیا تھا۔ وہ کسی طور عالم کی خود سے بیزاری برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر عالم نے نظریں چرائیں تھیں۔ ہیزل کے پانی بھر سے بھرے نینوں نے عالم کو بے چین کر دیا تھا۔ پلیز رونا نہیں۔ اچھا، میں اماں سائیں سے اجازت لے کر آپ کو لے جاؤں گا، آپ اداس نہیں ہوں، اور آپ بلیک ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ عالم سائیں، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ تعریف کیسے کرتے ہیں، لگتا ہے آپ کو یہ بھی سکھانا پڑے گا۔ اچھا جی، چلیں سکھا دیں، دراصل آپ کا عالم ان معاملوں میں تھوڑا نادان ہے۔ پہلے ایسے ہاتھ پکڑتے ہیں، اس نے عالم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، اور پھر لڑکی کو کمر سے پکڑ کر کھینچتے ہیں۔ اس نے عالم کا ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے خود ہی قدم آگے کی جانب بڑھائے تھے۔ پھر عالم کے الفاظ جیسے گڑمڑ ہونے لگے تھے۔ پھر اسے آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔ اس نے اپنی کانچ سی آنکھیں عالم کی ہیزل آنکھوں میں ڈالی تھی، اور پھر اس طرح لڑکی کی طرف جھکتے ہیں۔ اس نے عالم کا چہرہ کالر سے پکڑتے اپنی جانب جھکایا تھا۔ اچھا، اور پھر عالم نے اس کے بے حد قریب جھکتے بولا تھا۔ ہیزل کی گرم سانسیں عالم کی ناک سے ٹکراتی اس کے دل میں ہلچل پیدا کر رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ جذبات میں بہتا، اس کی آنکھوں کے سامنے شان عالم کا چہرہ آیا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ پھر آگے لڑکی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں نا، تو اسے کیا پتا، ہیزل نے معصومیت سے بولا تھا، اور عالم نے ہوش میں آتے قہقہ لگایا تھا۔ ہیزل، آپ بہت تیز ہو۔ عالم نے اس کی کمر سے ہاتھ نکالتے اپنے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا۔ ہیزل منہ بسوڑتے پیچھے ہوئی تھی۔ ایک تو آپ کو تعریف کرنا سکھا رہی تھی، الٹا آپ مجھے تیز کہہ رہے ہیں۔ اچھا ہیزل، کل آپ کی کھیر پکائی کی رسم ہوگی، کیا آپ کو کھیر پکانی آتی ہے؟ عالم سائیں، ہمیں تو نہیں آتی، اب ہم کیا کریں گے، اماں سائیں تو غصہ کریں گی۔ ہیزل نے بڑی روانی سے جھوٹ بولا تھا۔ ارے آپ ٹینشن نہیں لو، میں کھیر کا انتظام کر دوں گا، آپ بس اماں سائیں سے کہنا کہ کھیر آپ نے پکائی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ہیزل کو لگا کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے۔ ارے بیگم صاحبہ، ایک چوکھی خبر لائی ہوں۔ بول شمو، کیا لائی ہے؟ بیگم صاحبہ، جو عالم سائیں کی ووٹی ہے نا، اسے کھیر نہیں پکانی آتی، اور عالم سائیں انہیں باہر سے کھیر لا کر دیں گے۔ بہت اچھی خبر لائی ہے شمو، بہت مزہ آنے والا ہے کل، رقیہ بیگم نے خباثت سے قہقہ لگایا تھا۔ گلے لالا، عالم نے پاس سے گزرتی گل کو آواز دی تھی۔ جی لالا۔ گل، کیا آپ کو بھابھی پسند نہیں آئیں؟ ہم نے محسوس کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بالکل بھی وقت نہیں گزارتی۔ نہیں لالا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، رقیہ پھپھو نے ہمیں منع کیا ہے، گلے لالا جلدی سے بولی تھی۔ عالم نے کچھ سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا تھا۔ آپ اپنی بھابھی کے قریب رہیں، ہم خود پھپھو کو سنبھال لیں گے۔ جی لالا، ہمیں تو ہماری چھوٹی سی تیکھی سی بھابھی بہت پسند ہے۔ گلے لالا عالم کے کہنے پر کھل کے مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا بھائی، میں جا رہی ہوں بھابھی کے پاس۔ اوکے ٹھیک ہے ماضی۔ ہیلو ڈاکٹر ودان۔ کوئی ٹھک کر کے ان کی میز پر آن بیٹھا تھا۔ آپ مس مہر، آپ کو تمیز نہیں ہے کسی کے کیبن میں آنے کی؟ مسٹر ودان، عالم، مہر اور تمیز دو الگ چیزیں ہیں۔
क्या आपके घर वाले आपको घर नहीं रखते जो आप हर वक्त मेरे आगे पीछे पाई जाती हैं? कल के बाद से ये लड़की वदान के हवासों पर छाई हुई थी, इसलिए उसने बेदरीग सुनाई थी। महर की आंखें नम हुई थी, लेकिन वो अपनी आंखों की नमी ढकेलते मुस्कुराई थी। अरे डॉक्टर वदान, हम कोई आपकी तरह के डॉक्टर थोड़ी हैं जो मसरूफ़ रहेंगे। वेले लोग हैं, हम पूरा दिन खाते पीते और सड़कों पर फिरते हैं। अब हम कोई लालटेन थोड़ी हैं। मिस मेहर, आप कुछ भी कर लें, लेकिन मैं आपसे इम्प्रेस नहीं हो सकता। आप अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं और मेरा भी। डॉक्टर साहब, आप अपना काम करें, हम तो जस्ट आपको देखने आए हैं। चुपचाप आंखों को ठंडक पहुंचाकर चले जाएंगे। वदान ने अपना सर पकड़ा था। ये एक ढीठ लड़की थी। तभी उसके मोबाइल पर बजती बेल ने वदान को अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। स्क्रीन पर चमकता नंबर देख उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। जाने मन के नंबर से कॉल आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। अब अगर मेरी ज़िंदगी ने कॉल कर ही ली है तो बोल भी लें, हम तो आपकी सांसों से पहचान लें कि मेरी जाने मन बात कर रही हैं। दूसरी तरफ से मुसलसल खामोशी पर वदान मुस्कुराते हुए बोला था, वालेकुम अस्सलाम। वो अम्मा साईं कह रही हैं कि आज आप जल्दी आ जाइएगा, एक दावत पर जाना है। चश्मे बद दूर चलें, आपने याद तो किया, चाहे अम्मा साईं के कहने पर ही किया। जी अम्मा साईं, कह देंगे, हम आ जाएंगे। और एक हुक्म अब मेरी ज़िंदगी के लिए। महर का रंग फक हो रहा था। वदान का अंदाज उसे बहुत कुछ समझा रहा था। उसकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन वो दिल पर पत्थर रखकर खड़ी रही थी। जी, अलमारी में साइड पर आपकी जो पर्पल कलर की साड़ी रखी है वो पहन लेना। और मुझे पता है अम्मा साईं एतराज़ करेंगी, लेकिन मैं इन्हें संभाल लूँगा। आप ऊपर से चादर ले लेना। जी ठीक है। मैं फ़ोन रख दूँ? अगर आपने पहली बार कॉल कर ही ली है तो कुछ हसीन अल्फाज हमारी समातों की नज़र कर दें, अपनी आवाज़ का सदका उतार दीजिए। आई मिस यू, माहीन ने जल्दी से कहते कॉल काट दी थी। मी टू ज़िंदगी। आलम ने कॉल बंद करते महर के धुआं धुआं होते चेहरे को देखा था। वो खुलकर मुस्कुराया था। उसे उम्मीद थी अब ये लड़की बाज आ जाएगी। महर ने आलम को मुस्कुराते देख जल्दी से अपने तासुरात सही किए थे। तुम समझ तो चुकी होगी कि मैं किससे बात कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह की साथी, मेरे होने वाले बच्चों की अम्मा, सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो मेरी शरीके हयात, वदान आलम ने मुस्कुराते हुए कहा था। तभी महर ने अपने हलक में चुभते आंसुओं को पीछे धकेलते वदान की जानिब कदम बढ़ाए थे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके शादीशुदा होने का सुनकर मुझे फ़र्क पड़ेगा, तो डॉक्टर साहब आप गलत समझे, क्योंकि मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझसे पहले आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थीं या मुझसे पहले आपकी कितनी बीवियां हैं। हाँ, अगर मुझे फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि मुझसे बाद आपकी ज़िंदगी में आने वाली किसी भी चुड़ैल को मैं मौत के घाट उतार सकती हूँ। तो मिस्टर आलम वदान, दूसरी शादी की तैयारी करें, क्योंकि महर के मंजूर नज़र हैं आप, और महर मर्द हो जाएगी, लेकिन किसी और की नहीं होगी। महर ने वदान की शर्ट को कॉलर से पकड़ते उसकी आंखों में आंखें डालते शिद्दत से ये अल्फाज अदा किए थे। वदान तो महर की आंखों में शिद्दत देखकर हैरान था। वो डर चुका था महर की मोहब्बत से। उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो बहक ना जाए। महर झटके से कॉलर छोड़ती बाहर निकल गई थी। वदान को भी इस लड़की से टेंशन होने लगी थी। ये लड़की किसी सूरत बाज नहीं आ रही थी। इस लड़की को कोई बड़ी चोट पहुंचानी पड़ेगी, फिर शायद ये बाज आ जाए। वदान ने कुछ सोचते हुए अपना सर झटका था। छुटकी ओए छुटकी, ये ले तेरे नान, और ये ले अम्मा की फेवरेट रसमलाई। वाह भैया, क्या आज लॉटरी निकल आई है। आहो चचा शीदी से पैसे लिए हैं, इसने दिल में सोचा। अच्छा बता अम्मा किधर है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, बाहर से आवाज़ सुनाई दी। मैं कहता हूँ निकलो भाई, 6 माह से किराया नहीं दिया तुम लोगों ने। चलो अरसलान बाहर निकल। जी जी चचा, बस में 1-2 दिनों में। ओए तू चुप कर, अभी के अभी हमारा घर खाली कर, वरना। चचा ये लें, कुछ पैसे रख लें। चचा तुझे अल्लाह का वास्ता, मैं कहाँ जाऊँगा आधी रात। चचा मैं इंशाअल्लाह तुझे जल्द किराए के सारे पैसे दे दूँगा। अरसलान ने सुबह के खाने के लिए बचाए पैसे किराएदार को देकर मामला ठंडा करना चाहा था। अगले महीने की 10 तारीख तक
अगर पैसे ना मिले तो अपना ये रंगों वाला मुंह यहाँ से गायब कर ली। अरसलान दुखते सर के साथ घर में दाखिल हुआ तो माँ और बहन को रोते पाया था। अम्मी जान, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? इंशाअल्लाह जल्द ही कोई इंतज़ाम करता हूँ। और फिर अगले दिन अरसलान फिर से एक उम्मीद लेकर इंटरव्यू के लिए गया था, लेकिन हमेशा की तरह सिफारशी सिलेक्ट हो गए थे। बाला आखिर उसने मकान का किराया देने के लिए चचा शीदे के ढाबे पर काम शुरू कर दिया था, जिससे उसके घर का गुजर बसर चलने लगा था। सेकंड मिनट घंटों घंटे दिनों में और फिर दिन महीनों में बदल गए हैं मैनेजर, लेकिन तुम अभी तक इस लड़के का पता नहीं चला सके। मैं कहती हूँ कि आप अब बूढ़े हो चुके हो कि ये नौकरी छोड़कर घर बैठ जाओ और अखबार में ऐड दे दो मेरी न्यू पीए के लिए। वो दीवार पर लगी पिक्चर को देखते हुए बोली थी। लेकिन मैडम जी, आई से लीव मी अलोन। वो जल्दी से बाहर की जानिब बढ़ा था। अम्मा ये देखो, जेडन कंपनी को पीए की ज़रूरत है। अम्मा मैं सुबह जाऊंगा। अम्मा दुआ करना। मेरा चांद, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। छुटकी और छुटकी यार, मेरी ब्लैक शर्ट तो प्रेस कर दे, सुबह पहन कर जाऊंगा। हाँ हाँ, प्रेस होकर वो घिसी तो पड़ी है, अब फट ही जाएगी। अच्छा ना, भाई की गुड़िया कर देना। अच्छा अच्छा, अब मक्खनबाजी नहीं। मेरी चंदा, तेरी शादी में शहजादे से करनी है, शहजादे से। भैया कूड़ा उठाने वाले शहजादे से। छुटकी, अच्छा अच्छा, मैं मजाक कर रहा था। दोनों बहन भाइयों का प्यार मिसाली था। शान आलम को एक हफ्ता हो गया था दुआ लीज़ा का टाइम टेबल फॉलो करते हुए। आज उसका कॉन्सर्ट था तो शान आलम भी हाजिर था। शान कुछ कर, वाकई में ये लड़की हर वक्त तो गार्ड्स के साथ रहती है। इसे काबू करना जान जोखिम का काम है। चल कुछ सोचता हूँ। दुआ लीज़ा ने जैसे ही इंग्लिश सॉन्ग ख़त्म किया था, चारों तरफ उसके नाम की गूंज थी। वो शान बेनियाजी से चलती अपनी हील की टिक टिक से स्टेज के बैक साइड पर जा चुकी थी। एनी, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ओके मैम, अपनी सेक्रेटरी से कहते वो अंदर अपने स्पेशल रूम की जानिब बढ़ गई थी। शान आलम ने जैसे तैसे करके इसके गार्ड गायब कर दिए थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। एक सेलिब्रिटी से जैसे ही हर वक्त गार्ड की ज़रूरत है, वो कैसे किसी गार्ड के बगैर बाहर जा सकती है। एनी, गाड़ी निकालो, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। जी मैम। 5 मिनट बाद घबराहट में एनी अंदर दाखिल हुई थी। मैम, वो गार्ड्स कहीं नज़र नहीं आ रहे। व्हाट, इट्स अर्जेंट? गार्ड नहीं है तो इट्स ओके, मुझे अभी जाना है। लेकिन मैम। शट अप। वो जल्दी से बाहर निकल चुकी थी। अपने हाई रोलिक्स में बैठते वो गाड़ी जन से बकरा ले गई थी। शान आलम भी उसके पीछे ही था, लेकिन शायद ये शान आलम की बदकिस्मती की थी कि दुआ लीज़ा की कार पर फायरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसा तो शान आलम ने सोचा भी नहीं था। ओह माय गॉड। दुआ की गाड़ी आउट ऑफ बैलेंस होते ही सामने वाली गाड़ी से टकराई थी। दुआ इस सिचुएशन से अच्छा खासा डर चुकी थी। शान आलम जल्दी से अपनी गाड़ी से निकलता दुआ लीज़ा की गाड़ी की जानिब बढ़ा था। दुआ लीज़ा को जल्दी से बाहर खींचते वो अपनी गाड़ी में बिठा चुका था। वो शॉक में कुछ भी समझने से कासिर थी। दुआ की गाड़ी तो बुलेट प्रूफ थी, जबकि शान आलम वैसे ही अभी भी मुसलसल फायरिंग हो रही थी। दुआ डाउन, दुआ, आई सेड डाउन। लेकिन दुआ कानों पर हाथ रखे सर झुकाए साकत बैठी हुई थी। शान आलम ने जल्दी से दुआ को अपनी गोद में खींचते गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया था। उसे खुद अंदाज़ा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। उसकी गाड़ी पे दुआ छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। लंदन जैसी कंट्री में ऐसे सरेआम फायरिंग। शान आलम हैरान था। एक गोली शान आलम के बाजू को छूते निकल चुकी थी। सामने चेक पॉइंट पर पुलिस देखकर शायद वो लोग भाग चुके थे। दुआ, लीज़ा, आर यू ओके? हे लीज़े, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। शान आलम ने उसे सीधा किया था। दुआ की नज़र होश में आते ही शान आलम के बाजू पर पड़ी थी। काम डाउन दुआ, इट्स फाइन। नो नेवर हरी अप। शान आलम ने हॉस्पिटल ले जाने के बजाय गाड़ी दुआ के फ्लैट की जानिब मोड़ दी थी। फ्लैट आ गया है, आप जाएं, उसने इंग्लिश में कहा था। शान आलम भी अब जल्दी से बाहर आया था कि कहीं इस दफ़ा मना करने के बाद वो अंदर ही ना चली जाए। दुआ बीबी, ये क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, आप जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं, बस आप मुझे फ़र्स्ट एड बॉक्स दे दें, मैं खुद कर लेता हूँ। गो एनी, कॉल दी डॉक्टर। जी मैम। ये आप पेन किलर ले लें, देर काफ़ी हो चुकी है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। और ये बैंडेज रोज़ चेंज करनी है। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में
کچھ ہدایت کرتا جا چکا تھا۔ آئی ایم سوری دی آل بیکاز آف می، آئی ایم ریئلی سوری۔ نہیں کوئی بات نہیں، یہ حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ شاہ عالم نے بھی انگلش میں جواب دیا تھا۔ اوکے میں چلتا ہوں، بہت شکریہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے۔ نو نو آپ ریسٹ کریں، ابھی آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ شاہ عالم بھی جلدی سے سر پکڑتا بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ دعا بھاگ کر اس تک آئی تھی۔ پلیز آپ ریسٹ کریں، ابھی آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ اس نے شان کے بازو سے پکڑتے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ پین کلر کی وجہ سے شان غنودگی میں جا چکا تھا۔ دعا اچھا خاصا پریشان ہو چکی تھی، تبھی اس کے بابا کی کال نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔